It is a privilege to introduce Mr. Narendra Vishwakarma, a visionary cybersecurity strategist and the chief security architect with over 16 years of experience in designing and implementing robust security frameworks across global enterprises and critical public sector ecosystems. An MBA in FinTech from IIT Patna and a certified CISM and CRISC professional. He combines technical excellence with strategic foresight. His contributions to national cybersecurity through engagements with CERT-In and various Government of India frameworks have reinforced digital trust at a national level. We are honored to have him share his knowledge and insights with us today. Now I would like to invite Sir to come on stage and guide us. A huge round of applause for Sir. Sir, please come. This whole objective of this computing, right? How we are implementing in the real life. So that is something we are going to talk about today. Let's think about, are you really aware that you have the surrounding with the quantum computing, right? This session is going to interactive, right? I'm not going to do only individual who is going to talk to you. I'm not going to give you the bombarded with the informations. I'm only going to give you a realization of the need of quantum computing, right? So how the things are being revolving nowadays and how we are implementing in a daily life. Are you thinking that when you are pushing a transaction through the Paytm or PhonePe, really thinking how things are moving ahead? Anyone realize that what all the stages are coming, where you are making a security, where you are ensuring your partner called your Paytm, PhonePe, any banking transaction application that you are using today, right? Really it's implementing a safeguard to you. How they are implementing? Are the normal system are enough capable to implementing this kind of security? Is it possible? Really you are thinking that when you are making some, like people are sitting here, they are technology people, they are non-technology people, how they are, when they are students also. एकेडमिक स्टूडेंट्स आप क्या पढ़ाते हैं मैम? मैनेजमेंट। और आप मैनेजमेंट, आप लोग कंप्यूटर साइंस, ग्रेट। एंड you sir? Computer science. Are you guys computer science? And you this guy? Okay, let's think about क्या हमारे पास रियल टाइम सिनेरियो हम देखते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग कहीं पे इम्प्लीमेंटेड है? सोचा कभी सोचा आपने? तो हमें पढ़ते हुए कम से कम 3 साल हो गए, मतलब 4 साल हो गए, मतलब अगर आपका लास्ट सेमेस्टर है या फर्स्ट सेमेस्टर है या आपने 12th 11th में पढ़ा होगा, राइट? तो कभी सोचा है आपने? थोड़ा सा और पीछे आते हैं, ठीक है? तो आप कंप्यूटिंग कहाँ पे यूज देखते हैं? अगर आप ये पंखा चल रहा है, BLDC फैन के बारे में जानते हैं आप लोग? BLDC फैन, राइट? तो हमें थोड़ा सा अपने स्टैटिक्स थोड़े से अनेबल करने पड़ेंगे, राइट? BLDC फैन इज समथिंग यू आर चेंजिंग द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल. यू आर ऑल्सो चेंजिंग योर एनालॉग टू डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब AC को DC में कन्वर्ट कर रहे हैं. नाउ योर DC इज कन्वर्टिंग इन द मोशन where you have the granular control your motions, right? How you can controlling your speeds, your electricity, how much watts you want to give to fan. That is something is being implemented in the embedded system, and embedded system is controlling your motors, now the DC motors, right? So think about, आपके सिनेरियो में आपने फोन देखा होगा, फोन से पीछे आते हैं आपने रिमोट देखा होगा. सबसे पहले हमने टीवी देखा था रिमोट, एम्बेडेड सिस्टम वाला रिमोट. How things are working, right? What all computing system is working behind this, the chip system is enabling the IR signals. हाँ. सर आप थोड़ा सा मूवमेंट करिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, वो बार-बार. अच्छा, मूवमेंट कम करना है. ठीक है. तो थिंक अबाउट दिस पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमें लगता था कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. आपने ट्रायंगल शेप्स पढ़े थे, राइट? ट्रायंगल शेप्स के लेंथ और विड्थ और हाइट निकालने के लिए हमने एल्गो यूज किया. वेयर वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट सॉल्यूशंस, राइट? आपने अभी तक सोचा कि हम ट्रायंगल जो हम इक्वेशन निकालते हैं उसका रियल लाइफ सिनेरियो में कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है? एनीवन थिंकिंग अबाउट दैट?
कभी हमने स्टेयर्स डिजाइन किया, आपने स्टेयर्स, ट्रायंगल इक्वेशंस वर्किंग टू डिजाइनिंग स्टेयर्स। अगर आपको डिजाइन करना है कि आपकी छत की हाइट 10 फीट है एंड द डिस्टेंस इज 11 फीट एंड 12 फीट, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी देयर, वेयर द इक्वेशन इज गोइंग टू वर्क? आपने कभी सोचा? ओके, लेट्स टेक अनदर सिनेरियो। आपके घर पे 1000 लीटर की टंकी का पानी है, टंकी है उसमें पानी है। अब आपको कितने लीटर पानी डालना पड़ेगा, उसकी अब उसमें कितना वेट होगा जो आपकी छत आपका लोड ले सकती है, वेयर द वॉल्यूम कॉन्सेप्ट इज कमिंग, राइट? आपके वॉल्यूम में, उस वॉल्यूम में कितना वेट होगा, राइट? पर ग्राम कितना वेट वो क्यूबिक पानी स्टोर कर सकती है। फॉर दैट यू कैन डिजाइन योर द पिलर्स। तो दिस इज रियल टाइम सिनेरियो। द सेम वे अगर हम कंप्यूटिंग डिजाइन कर रहे हैं, राइट, तो कंप्यूटिंग रियल लाइफ में कहाँ पे यूज हो रही है, दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। आई वाज डिस्कसिंग विद सर दैट ओके, वी हैव सम ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी आर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वी हैव अ फाउंडेशन। क्या आप अपने स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि दे कैन डेवलप सम प्रोडक्ट्स इन योर यूनिवर्सिटीज एंड दे कैन सॉल्व द रियल टाइम प्रॉब्लम्स, राइट? कोई भी आप वर्ल्ड में आप इश्यूज देख रहे हैं, उस पर क्या आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं। The people who have developed the quantum computing, they are in the university peoples. They are the organized. They are running the organization on the telecom sectors. I was in BT. BT has developed the quantum QAB, right? Where they are reverse engineering. They are doing a reverse engineering to understand photons. देखते होंगे आपने क्रिप्टो, फाइबर क्रिप्टो, जब फाइबर में डेटा ट्रांसमिट होता है, where you have the leverage to implementing the cryptography. In case of any photons is going to destroy and manipulated by the hackers, the photon is going to destroy and break the communications. वहाँ पे ब्रिटिश टेलीकॉम ने इम्प्लीमेंट किया to solve the problems. Because क्या होता है, आपने आप देखते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंटरनेट कैसे जाता है? हाँ जी, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं, बड़ी मजा आएगा आप लोगों को। कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंटरनेट जाता है या कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होता है? हाँ जी, यस, यू नो हिम प्लीज। हाँ जी, fiber optic that cable is से one mechanism of connecting satellite. The second is fiber optics. Yeah, sea के अंदर sea fibers होती हैं. Sea fibers is connecting with one continent to another continent. In case someone is intercepting your data, entire country is going to intercept it. अगर चाइना हमारे फाइबर को इंटरसेप्ट कर सकता है तो पूरे कंट्री का डेटा दे सकता है. What is happening in this country? So where the crypto is implemented to protect the photons. In case any photons is going to manipulate, the photon communication is going to destroy and break the communication. Where the British Telecom and the Tata and the Reliance is working to implement this kind of solutions. Think about the quantum key distribution. How this is going to work? When you are distributing any data between the two parties, one client A, client B, and enabled with the quantum computing with the key distribution. In case of any party is trying to manipulate, okay, before coming to this complex scenario, let's come to the symmetric asymmetric scenario. What is symmetric? What is asymmetric? बताइए, anyone? This is first chapter of 11th, 12th and the first semester of your BTech or BCA, right? Where you are learning symmetric algorithm, asymmetric algorithm, right? Can we come some scenario? अच्छा, उसका रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है सिमेट्रिक का? रियल लाइफ में सिनेरियो है कि जब अपने घर के वाईफाई से आप कनेक्ट होते हो, जब आप पासवर्ड डालते हो, वो क्या होता है, किस इंक्रिप्शन से इनेबल होता है? WPA2, राइट? WPA इज अ नॉर्मल, WPA2 विद अल्फा न्यूमेरिक कीज इंक्रिप्टेड होता है, राइट? एग्री? फिर अगर ये सिमेट्रिक एल्गोरिथम है, सिमेट्रिक एल्गोरिथम में वन साइड, the one key is enough capable to encrypt the data and decrypt the data. That is called a symmetric key mechanism. आप याद आ रहा है, राइट?
Asymmetric is something there is a two keys. One key is for encrypting a data, second key is decrypting a data. Like I am the party, I am sending a data by encrypting my key, right? And the party B is not able to decrypt either way जब तक मैं आपको की शेयर नहीं करता, right? What is the real life of scenario? इसका रियल लाइफ ऑफ एग्जाम्पल क्या है असिमेट्रिक की का? सोचिए। नहीं, जब भी आप किसी बैंक की साइट पे जाते हैं आपको दिखता है HTTPS, राइट? HTTPS इज द एग्जांपल ऑफ HTTP and the secure mechanism HTTPS where the asymmetric key is implemented to protect the communication. जब भी आप कोई client to server communicate करते हैं, where the channel encrypted channel is going to build and is going to maintain the key mechanism between the server and client. In case of any communication, any manipulation is going to happen, the mechanism is going to destroy and your communication is going to break, right? That is something in the asymmetric algorithm. अच्छा, उसमें HTTPS में मैकेनिज्म कितने तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं? हाँ जी, जब आपको ग्रीन बार दिखता है, राइट? किसी बैंक की साइट पे जाते हैं तो आपको ग्रीन बार दिखता है, एक नॉर्मल बार दिखता है HTTPS के साथ, और एक के साथ सील लॉक आता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री? हाँ जी, एक होता है नॉर्मल, हाँ, एक सिक्योर. जब आप HTTPS में आते हैं सिक्योर लेयर में आते हैं, वेयर इज द एक्सटेंडेड वैलिडेशन, EV सर्टिफिकेट कहते हैं, SSL सर्टिफिकेट, अनेबल विद द एक्सटेंडेड वैलिडेशन. There is a further validation is going to happen. There is a third party who is providing the certificate, SSL certificate for you, is going to the extended validation for your organization and keep validating your organizations कि हाँ ये entity valid है. उसके पास से green bar आता है. And then there is a further the security is sealed. Extended validation के बाद भी sealed आता है. That is ensuring that the 100% communication between the client and server is secure. आई थिंक हमें रियल लाइफ में ना देखना पड़ेगा. अच्छा, थोड़ा सा और पीछे आते हैं. आपने ये क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था 5th में, एक हमारे गुरुजी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि रिक्वायरमेंट जो है, जरूरत हमारी आविष्कार की जननी है, राइट? और हमारी जिज्ञासा हमारे आविष्कार को जन्म देती है. तो जिज्ञासा जब तक नहीं होगी, आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आप जो भी कुछ देख रहे हो, आपको कम से कम जानने की इच्छा रखनी पड़ेगी कि जो आप देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, एटलीस्ट ये मोबाइल में है क्या, एटलीस्ट इस पेटीएम ऐप के पीछे क्या कौन सी चीजें काम करती हैं, राइट? एटलीस्ट ये फैन चलता कैसे है, ये हमें इतनी जिज्ञासा तो रखनी पड़ेगी. लाइक व्हाट काइंड ऑफ सोफा कुशनिंग इज देयर, मेमोरी फॉर्म है या सिंथेटिक फॉर्म है, राइट? कौन सा फैब्रिक हमारे स्किन को हेल्दी रखता है, कौन सा डिहाइड्रेट करता है, कौन सा इरिटेशन करता है, इरिटेट करता है, इचिंग होती है. दैट लेवल ऑफ काइंड ऑफ जिज्ञासा हमें बनानी पड़ेगी, सो वी कैन चेंज द वर्ल्ड. सो लेट्स कम टू द की डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म. की डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में क्या होता है, जब एक सर्वर दूसरे सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, द डिस्ट्रीब्यूशन द फोटोन्स बिटवीन द टू सर्वर्स. इन केस कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन एक सर्टेन टाइम लेंथ के बीच में ब्रेक होता है, दैट इज द मैकेनिज्म इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय एंड ब्रेक द कम्युनिकेशन. वहां पे अनऑथेंटिकेटेड चैनल ब्रेक हो जाता है एंड द कम्युनिकेशन इज गोइंग टू ब्रेक. सो वी कॉल्ड एज द की डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म. रैंडम नंबर जनरेशन. टेल मी द रियल लाइफ ऑफ सिनेरियो वेयर द रैंडम जो नंबर है हम यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं रैंडम नंबर? हाँ जी, रैंडम नंबर कहाँ यूज करते हैं? सिक्योरिटी के लिए. हाँ जी, पासवर्ड तो हम स्टैटिक डालते हैं, एक कैप्चा, राइट? राइट, या अनदर सिनेरियो. हाँ जी, आईपी एड्रेसेस, ओटीपी वेरिफिकेशन. ओके, एक एग्जांपल ठीक है, कैप्चा हम इंप्लीमेंट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी पीपल आर इंप्लीमेंटिंग इज image selections. There is a square of images, they are distributed in multiple forms of images. उसमें पीछे कंप्यूटिंग काम करती है, जिसमें कि वो एनालाइज करती है, कि वो बताती है कि स्ट्रीट कहाँ है,
स्ट्रीट लाइट कहाँ है, बसेस कहाँ है, तो देयर इज अ मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस where the computing is working and behind to mix the and select and analyze the algorithm to match the password. There is a password behind this image correlation, right? We call it the encryption key. जैसे encryption key match होता है, you get authenticated. So where this new scenario is implemented first. So this is something is एक सिनेरियो और देख सकते हैं कि जब आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर यूजर नेम पासवर्ड डालते हो आप, राइट, जैसे यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, द पासवर्ड इज गोइंग टू इनक्रिप्ट एंड देयर इज अ इनक्रिप्शन वैल्यू इज गोइंग टू सेव इन अ डेटाबेस. जब डेटाबेस में आपका इनक्रिप्शन वैल्यू होती है, अगर वो शाह है, 256 है, 128 है, एईएस है, if it is a single bit encryption that can be retrieved and decrypted and puts the plain text password. लेकिन रेंडमाइजेशन में क्या होता है कि जैसे ही आप की पंच करते हैं, देयर इज अ मल्टीपल रैंडम नंबर्स इज गोइंग टू पंच इन द डेटाबेसेस. एनी रैंडम नंबर्स कैन नॉट बी मैच टू द ऑथेंटिकेशन पासवर्ड. सो उसको मैच करने के लिए काफी साल लग जाएगा. देयर इज द कंप्यूटिंग इज गोइंग टू वर्क्स टू मैच द राइट की टू गेट ऑथेंटिकेटेड. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी इंप्लीमेंट रैंडमाइजेशन, क्रिप्टो रैंडमाइजेशन कहते हैं जिसको हम. बाकी कुछ एग्जांपल्स हैं किसी कंट्री से इंप्लीमेंट के, उससे बात नहीं करते हम. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज how people are syncing each other, that which standard they have to maintain. So now there is organization is NIST. NIST is maintaining all the standards worldwidely. They are sharing all this standardization. Okay, आपको authentication के लिए क्या प्रोटोकॉल यूज करना है, डेटा इंक्रिप्शन के लिए क्या प्रोटोकॉल यूज करना है, हाई कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग के लिए क्या मैकेनिज्म है, एंड हाउ टू मेक दी शील्ड्स एंड द स्टैंडर्डाइजेशन. और क्या कहते हैं, हार्डनिंग गाइडलाइंस. व्हाट डू यू कॉल इट, हार्डनिंग गाइडलाइंस, क्या कहते हैं हम उसको? हार्डली गाइडलाइंस इज क्या है कि यू हैव अ स्टैंडर्ड्स टू मेंटेनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग योर कंट्रोल्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे कि कोई भी एक नॉर्मल सिनेरियो लेते हैं, कोई भी व्यक्ति आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशंस में तो पहले रिसेप्शन पे ही जाएगा. रिसेप्शन के बाद ऑथेंटिकेट होगा तो वो या किसी हॉल में जाएगा या किसी से मिलने जाएगा. सो that level of scenario is standardizations to hardening your system. Only role based access is going to implement what we call is RBAC controls. Role based, जैसे कि मुझे क्या एक्सेस है, मुझे सिर्फ अकाउंट का डेटा एक्सेस है. आई कांट एक्सेस द IT डेटा, आई कांट एक्सेस द एडमिशन डेटा, right? Even though I have a whole database access, but I can't access the database table where the implemented is other parties, other departments. We call it the role-based access. Those standards is maintained by the NIST controls. The National Institute of Standards and the Technology is maintained by the worldwide. Any standard that you need to implement and create your systems, you can follow these standards. इसको word. The encryption is woven into the very fabric of our lives. It establishes trust and safeguards our secrets.
So the multi-hop environment we call as supply chain. Supply chain is something is where you are initiating your product in the multiple phases, like you have the R&D phases, you have development phases, you have final development, you have the distribution system, then you have the data collections, and we have the real life scenario where you are pushing to your multi-node environment like cloud computing, right? where you have the multi countries transactions, जैसे कि आप सेफ में देख रहे हैं, फिडेक्स में देखते हैं, या आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में देख सकते हैं, जैसे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आप मल्टीपल होप, एक जगह होप अनेबल करते हैं, मल्टी कंट्री में होप अनेबल हो जाता है, जैसे कि यू हैव द अवेलेबिलिटी जोन्स, व्हाट यू कॉल एज एक कंट्री के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स वी कॉल एज ए अवेलेबिलिटी जोन्स, राइट? दो अवेलेबिलिटी जोन्स आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं. देयर इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड इज फैट पाइप्स. Fat pipe is a concept in the data cloud is where you are replicating your data to multi geo countries, right? So same scenario में कहते हैं hot swappable, cool swappable. Hot swappable is something is कि आपका डेटा आज की डेट में यहाँ पे लाइव है इंडिया में, when you are the India data center is going to down, same other US data center is going to up, और China data center और Singapore any country, तो hot swappable concepts हैं इसके अंदर, right? So this is where the quantum computing is working to replicate your data on the real life. So I was in British Telecom and right, British Telecom and Toshiba, they have developed the product called as Secure Network in the London. So we were managing the ATMs, right? So ATM is something the real time transactions. नॉर्मल हमारे ATM की तरह नहीं होते. There is a business ATMs. बिजनेस ATM से मल्टी करेंसी प्रोसेस होता है, राइट? देयर इज नेटिव करेंसी तो होता ही है, मतलब मल्टी करेंसी प्रोसेस भी करते हैं, जिसमें कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, या जैसे कि हमारी इंडिया की अब करेंसी के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करती हैं, और उसके डिज़ाइन कौन करता है हमारी करेंसीज इंडिया की. हाँ जी, सोचिए, क्वेश्चन लिखे घर जाके भी पढ़ना पड़ेगा कुछ, राइट? तो इसी तरह से ब्रिटिश टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं मल्टी नोड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर एक नोड करेंसी डिज़ाइन करता है, दूसरा नोड करेंसी प्रिंट करता है, तीसरा नोड करेंसी डिप्लॉय करता है करंट कंट्री के अंदर, तो उसमें अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं. देयर इज अ चांस कि अगर डिज़ाइन लीक होता है तो स्टिल दे कांट प्रिंट ऑन द प्रेस, बिकॉज द प्रेस इज connected with the multiple computers and cryptographies to maintain the design and the authenticity. In case of authenticity compromise होती है, they can't finally print the currency. So thus इस लेवल तक की सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? फिर उन्होंने एक अर्बन डेवलपमेंट्स के लिए ब्रिटिश टेलीकॉम ने एक रेल कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंट किया था. रेल कम्युनिकेशन समथिंग फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा कि एक डिस्टेंस वेक्टर के ऊपर अगर जो अभी कोई भी ट्रेन आती है तो वो ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन ए एंड ट्रेन बी. आपको सिग्नल की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको विजुअलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है. इवन दो हैव डोंट इलेक्ट्रिसिटी, वो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करता है एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कैन ब्रेक द ट्रेन्स. द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश पीपल हैज इम्प्लीमेंटेड इन देयर कंट्री. सो दिस इज समथिंग द रियल लाइफ ऑफ एग्जाम्पल. आपने इंडिया में देखा है कभी कुछ? मुंबई में इम्प्लीमेंट हुआ है. किसी आइडिया किसने रीड आउट किया 2005 में? तो इंडिया मुंबई की लोकल ट्रेन्स आर आल्सो अनेबल्ड विद द क्वांटम कंप्यूटिंग. दे आर मेंटेनिंग डिस्टेंस वेक्टर सॉल्यूशंस. इन केस एक ट्रैक पे दो ट्रेन आती है, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई थ्रू द डिस्टेंस की एक सेफ डिस्टेंस है या नहीं है. जैसे सेफ डिस्टेंस पे आता है तो इमरजेंसी ब्रेक्स लग जाते हैं. मुंबई हैज इम्प्लीमेंटेड, द पूना इज इन द फेस and Delhi is also going to implement in the metro, but metro में अभी भी implement नहीं है. metro is in the phase of testing और अभी चल रहा है. so इस तरह के रियल लाइफ सिनेरियो है जिसमें कमर्शियली क्वांटम कंप्यूटिंग इन्वॉल्व है. आपके कॉलेज में रिजल्ट कैसे निकलता है? कोई सिस्टम किसी का पता? हाँ जी, आप लोग मैनुअल पंच करते हैं, डेटाबेस में कैसे इनक्रिप्ट करते हैं? मान लीजिए आपका डेटाबेस क्रैश हो गया या कॉम्प्रोमाइज हो गया, किसी ने रिजल्ट मैनिपुलेट कर दिया, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं आप लोग?
ओके क्या हमारे पास मल्टी नोड एनवायरनमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट इम्प्लीमेंटेड है? क्या हमने इंक्रिप्शन अनेबल कर रखा है? हाँ जी, अच्छा, ओके। सो internal physical system. Delhi University has implemented the encryptions over the reverse engineering, right? How they are doing is, in case of anyone is going to punch the results, they are going to check with the master data. And if the master data is not going to match, they are not going to distribute the results to the multiple nodes. Like suppose Delhi University has the multiple campus, North campus, South campus, even though they have implemented the multiple countries. इन केस एक भी डेटा मैनिपुलेट होता है, वो डेटा सेंड करता है कि रिजल्ट डिस्क्लोज ना किया जाए, बाकी सिस्टम ब्रेक हो जाते हैं, वो ऑथेंटिकेट नहीं करने देता, ना ही रिजल्ट एक्सेप्ट करता है आपका टीचर का पंच करना, ना ही डेटाबेस पे इंप्लीमेंट करता है जाके डेटा टेबल में जाके राइट करता है। वी कॉल्ड एज ए रिवर्स इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन की मैकेनिज्म काम करता है कि एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से रेप्लिकेट करने के लिए दोनों का ऑथेंटिसिटी मैच करता है। जब दोनों ऑथेंटिसिटी मैच हो जाती है, इवन दो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज आल्सो इंप्लीमेंटेड फॉर द टीचर्स, बट डेटाबेस टू डेटाबेस इंक्रिप्शन काम करता है और वहां पे ऑथेंटिसिटी मेंटेन करता है, राइट। और उन्होंने ब्लॉकचेन भी इंप्लीमेंट किया था। ब्लॉकचेन इज समथिंग, वन नोड इज नॉट गोइंग टू टेक द मास्टर कॉल्स। मास्टर कॉल्स के आपने मास्टर डेटाबेस में लिख दिया, सब जगह वो रेप्लिकेट हो जाएगा? नहीं, देयर इज अ मल्टीपल नोड्स हु इज एक्टिंग एज अ मास्टर। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट यही है, राइट। आपकी ऑथेंटिसिटी कोई और भी ऑथेंटिकेट कर रहा है, सेम लाइक एज एसएसएल सर्टिफिकेट, कि आप कहते हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई ग्रीन चेक दे, सो यू आर नॉट द राइट पर्सन, यू आर सेइंग कि हाँ मैं ही राइट पर्सन हूँ और मैं ही अपने आप को ग्रीन साइन दे रहा हूँ। देयर इज अ थर्ड पार्टी, वी कॉल्ड एज ए की एल्गोरिथम मैकेनिज्म सॉल्यूशंस, राइट। दे आर गिविंग ऑथेंटिसिटी कि हाँ आप राइट हो, देन यू आर गेटिंग द ग्रीन सिग्नल्स। तो इस तरह का सॉल्यूशंस आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में भी। रियल लाइफ सिनेरियो में कुछ गवर्नमेंट डेटा ट्रांजेक्शंस देखते हैं। आपने आधार कार्ड पे क्या रिसर्च किया किसी ने? आज हम रियल लाइफ की बात करेंगे, हम तो बुकेस नॉलेज नहीं है, मतलब आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री बिकॉज वी आर इम्प्लीमेंटिंग डे टू डे इन द लाइफ, राइट। हमारे पास रोज ऐसे सोल्यूशंस आते हैं, रोज ऐसे सिनेरियोस आते हैं जहाँ सिस्टम हैक हो गया, हमें डेटा रिट्रीव करना है। एम्स का कॉम्प्रोमाइजेशन सुना था आपने किसी ने? 2 साल पहले हुआ, एम्स कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो हाईली सेंसिटिव डेटा, जैसे आपके मंत्री का डेटा है, आपके स्टेट का डेटा है, सभी की मेडिकल इंफॉर्मेशन एम्स के डेटाबेस में स्टोर है, एंड दैट्स कॉम्प्रोमाइज। हाउ दे कॉम्प्रोमाइज? एंड जस्ट फॉर द फिशिंग अटैक्स। किसी ने फिशिंग अटैक हुआ, किसी के मेल पे ये आया कि डू हैव समथिंग इज एक्साइटिंग न्यूज, यू आर गेटिंग बोनस, ठीक है, बोनस के लिए क्लिक किया एंड देन एंटायर डेटाबेस इज गॉट इनक्रिप्टेड, रनसमवेयर अटैक। तो नेशनल डेटा ट्रांजेक्शंस में हम यूज करते हैं, जैसे कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के ट्रांजेक्शंस को वैलिडेट करता है। दे आर शेयरिंग द इंक्रिप्शन कीज टू मल्टीपल स्टेट्स। सेम लाइज विद द आधार कार्ड। आधार कार्ड में क्या होता है, इट्स हार्डली टू ब्रेक। आधार कार्ड में क्या होता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के डेटा को पंच करता है एंड दे आर गिविंग द वेरिफिकेशंस दैट ओके आपने डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस किया, हाउ इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन द डेटाबेस। देयर इज द अदर स्टेट ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू गिव द ऑथेंटिसिटी दैट कि आपका जो आधार कार्ड है जिस सिस्टम से पंच हुआ है, दैट सिस्टम इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। सिस्टम वैलिडिटी जिसे कहते हैं होस्ट चेक वैलिडेशन। होस्ट चेक वैलिडेशन इज कि एक रियल टाइप सिनेरियो लेते हैं, जैसे कि आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो। नेट बैंकिंग को बैंक को कैसे पता है कि आपका जो मोबाइल है वो आपका ही है? कैसे पता चलेगा? यूजर नेम पासवर्ड अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए और कोई और जो अपने मोबाइल से एक्सेस करने की कोशिश करे तो कैसे पता चलेगा बैंक को कि आप ही वो एक्स पर्सन हो जिसको हमने यूजर नेम पासवर्ड ग्रांट किया है? रिकॉर्ड नेट बैंकिंग में ब्राउजर में OTP इज अनदर केस, OTP मैनिपुलेट हो सकता है, राइट। हाँ, मोबाइल का मैक एड्रेस नहीं जाता वहां पे, दैट इज ऑल। फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। सिक्योरिटी सिनेरियो में कहते हैं होस्ट चेक वैलिडेशन। बिकॉज होस्ट चेक वैलिडेशन इज समथिंग हु इज योर होस्ट, हु इज योर क्लाइंट।
जैसे कि अब यूपीआई के अंदर इम्प्लीमेंट है, दैट इज गोइंग टू डू द डिवाइस वैलिडेशन। डिवाइस वैलिडेशन में क्या होता है कि IMI नंबर आपका मोबाइल के साथ मैच करता है एंड दिस OTP is going to create to make the real time scenario validation, right? But the net banking के सिनेरियो में कहते हैं host check validation, where you are validating your host by the browser check, your country IP, your host IP, your system informations and your credentials. All 5 checks जब complete होते हैं उसके बाद से वो आपको validate करता है net banking solutions में login करने के लिए, right? कुछ और सिनेरियो देखते हैं रियल टाइम में। We also implement the VPN encryption. What is the VPN encryption? एक नॉर्मल VPN सुना होगा आपने, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, right? How we are implementing the encryption over the VPN, right? This is something the people are implementing. The new concept is zero trust network. आपने सुना zero trust network? Over the VPN, the industry is now moving through the zero trust solution. Zero trust, मैं आपको जानता ही नहीं कि आप कौन हो. I need to authenticate by all the checks, right? Through the identity validation, I need to validate your identity कि आप कौन है, right? Are you using the right device? The right device is by doing the multiple checks कि आपके हो device के अंदर कोई ऐसा कोई backdoors तो install नहीं है, right? Who is going to take the data or sniff the data or filter the data, right? Second is they are going to identify that you are the human or robot by doing the check of validation like puzzles or the OTP or the randomization token, the multiple token through the OTP systems or any push mechanism. There are 2 types of OTP. One is रैंडम नंबर जनरेट होता है एंड देयर इज अ पुश मैकेनिज्म। माइक्रोसॉफ्ट OTP आपने यूज किया होगा या गूगल OTP यूज किया होगा, कोई भी OTP यूज किया होगा, वी कॉल्ड एज अ पुश मैकेनिज्म। पुश मैकेनिज्म इज समथिंग इज आप जब लॉगिन करते हैं तो आपको एक पुश आपके ट्रस्टेड डिवाइस पे मतलब मैसेज आता है एंड देन यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज, तभी आप एक्सेस कर पाते हैं। सो ये एक रियल टाइप सिनेरियो है। और 5G और IoT सिस्टम्स की बात करें, आपने ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट सुना है, ग्रीन वेस्ट टू ग्रीन एनर्जी। एनी एग्जांपल वेस्ट टू ग्रीन एनर्जी? हाँ जी, वेस्ट टू ग्रीन एनर्जी। पंजाब में पलाली जलाई जाती है और उसके बाद पोल्यूशन होता है, बट नाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज कमिंग इन द पिक्चर, पलाली को CNG गैस में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पलाली को एक सर्टेन टेम्परेचर पे ले जाके उससे CNG प्रोड्यूस होती है। So recently we were in the company is Ever Enviro. Ever Enviro is the organization, they are converting this all waste into the CNG. उसका वेस्ट मटेरियल भी निकलता है जब पलाली जलने के बाद, मतलब डिफॉर्मेशन होने के बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे वो कुशनिंग करते हैं, पेपर बनाते हैं, बाकी सारी चीज़ें करते हैं। बट द मेन कॉन्सेप्ट इज वी इम्प्लीमेंट इन द IoT सिस्टम वेयर द ऑल इकोसिस्टम इज गोइंग टू मेंटेन बाय द फिंगरप्रिंट्स कि टेम्परेचर कितना है। एक टेम्परेचर सर्टन लिमिट के जाने के बाद हमें अलार्म आएगा, फ़ोन पे अलार्म आएगा, सिस्टम में अलार्म आएगा कि टेम्परेचर मेंटेन करना है। बॉयलर की कंडीशंस क्या है, पाइपलाइन में कितना टेम्परेचर है, मतलब अगर हम कूलिंग सिस्टम यूज़ करें तो कूलिंग सिस्टम का क्या टेम्परेचर है। एवरीथिंग डेवलप्ड बाय द IoT एंड बिहाइंड दिस सपोर्ट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। दिस पैरेलल कंप्यूटिंग इज गोइंग टू हैपन। सेम टाइम में प्रोसेस करता है कि आपका टेम्परेचर कितना है, सेम टाइम में प्रोसेस करता है कि आपका प्रोडक्शन जो आउटपुट है वो कितना है, बेस्ड ऑन द कोरिलेशन इंजन इज इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट द एंटायर एनवायरनमेंट। तो रियल लाइफ सिनेरियो में भी आप देख पाओगे। मिलिट्री एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट में आपने ड्रोन अटैक देखे होंगे अभी रिसेंटली। हाउ दिस ड्रोन अटैक आइडेंटिफाइंग द लॉन्गिट्यूड लैंगिट्यूड, कैसे आइडेंटिफाई करता है, एकदम कितना फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप टारगेट चेंज करते हैं और टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन यू शूटिंग अ टारगेट, where the computing is working to parallelly identify the enemy location, same time your target. अगर enemy और target के बीच में collapse हो रहा है, the path is same time वो change करता है, that the high computing is required, we call it as a high quantum computing support by the satellite direction movement। और आपने वो भी देखा होगा कि अच्छा एक एग्जांपल बताते हैं रियल टाइप। आपने देखा होगा रॉकेट टारगेट सेट करता है, रॉकेट की मूवमेंट होती है,
मूवमेंट चेंज करता है, टारगेट कैसे सेट होता है, कितना भी मूवमेंट चेंज कर ले वो टारगेट सेट रहता है। जब तक उसमें फ्यूल है, जब तक उसके अंदर सिस्टम लॉक है, टारगेट लॉक है, तब तक वो टारगेट हिट करता ही करता है, चाहे वो कितनी भी डायरेक्शन चेंज कर ले। हाउ थिंग्स आर वर्किंग। तो रॉकेट साइंस पे आ गए हम लोग। रॉकेट साइंस इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बिहाइंड द क्वांटम कंप्यूटिंग, दैट द वेक्टर, जो वेक्टर डिसाइड होते हैं, द वेक्टर इज फ्रिक्वेंटली चेंजिंग बेस्ड ऑन द टारगेट। वो पूरा टारगेट स्कैन करता है एंड वेर एवर द डॉट्स आर चेंजिंग, द नंबर्स आर चेंजिंग लेफ्ट, आपने ग्राफ देखा होगा एक्स वाई की वैल्यू, सो एवरीथिंग इज एक्स वाई वैल्यू, नंबर्स है 0 1। जैसे एक्स वाई की वैल्यू चेंज होती है, इमेजेस, इसको वेक्टर कहते हैं, इमेजेस को स्कैन करके वेक्टर बनता है, और वेक्टर का एक वैल्यू होता है जो एक्स वाई ग्राफ के अंदर हम डिनोट करते हैं। जैसे ही वो वेक्टर चेंज होता है, द टारगेट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज एंड रॉकेट तब हिट करता है। तो शायद हमें थोड़ा सा और अपने आप को ना रियल लाइफ में देखना पड़ेगा। कुछ और सिनेरियो देखते हैं कि आज क्वांटम कंप्यूटिंग किस तरह से साइबर अटैक्स को डिफेंस कर रहा है, राइट। कुछ हमने एग्जांपल अभी देखे थे। वॉइस फिशिंग, वॉइस फिशिंग में कैसे पता चलेगा कि जो वॉइस है वो ओरिजिनल है या नहीं है। वॉइस को हम टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, विच टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग। हाँ जी, वॉइस को हम टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मेरे कोई नहीं चलेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप होमवर्क है, सॉरी, वॉइस को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड टेक्स्ट को प्रोसेस में कैसे लेके आते हैं, एंड प्रोसेस इज कंप्यूटिंग, राइट। सेकेंड इज ओटीपी थेफ्ट कैसे काम करता है। सो हाउ यू आर मैनिपुलेटिंग योर ओटीपी, राइट, यू आर क्लोनिंग योर सिम और यू क्लोनिंग योर होस्ट सिस्टम। तो जब ये आप मैनिपुलेट कर लेते हैं तो ओटीपी इज गोइंग टू चेंज, वेयर वी हैव रिप्लेस इज IDQ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस एंड इट्स डेवलप्ड बाय तोशिबा एंड ब्रिटिश टेलीकॉम, वेयर द OTP इज गोइंग टू मेंटेन बाय द होस्ट। अगर होस्ट की लोकेशन चेंज होती है, सपोज आपका मोबाइल आज दिल्ली में लाइव है, आप रजिस्टर्ड यूजर हो, नॉर्मली आप दिल्ली से यूज करते हो, सडनली यू चेंज योर लोकेशन बाय मुंबई और सम अदर कंट्री, दिस सिस्टम इज गोइंग टू आइडेंटिफाई कि ओटीपी जो लैंड हो रहा है, जो सेलुलर है, वो मुंबई का मतलब दिल्ली का सेलुलर नहीं है, मुंबई का सेलुलर है। ओटीपी इज नॉट गोइंग टू डिलीवर टू यू। दिस हाईली सिक्योर एनवायरनमेंट इज डेवलपिंग बेस्ड ऑन दी क्वांटम कंप्यूटिंग। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि रियल लाइफ में और क्या क्या हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज QR कोडिंग। QR कोड आपने देखा होगा, कहीं भी आप जाते हो QR कोड स्कैन करते हो, पेमेंट कर देते हो। क्या उस QR कोड के पीछे क्या है, मीन्स व्हाट ऑल एड्रेस इज देयर। हाँ जी, क्या एड्रेस होता है, QR कोड के पीछे क्या होता है। पहले तो मोबाइल नंबर आता था, अब मोबाइल नंबर नहीं आता है। पहले मोबाइल नंबर आता था, अब मोबाइल नंबर नहीं आता है। अब क्या आता है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, राइट। सब चीज़ें ना एड्रेस हो जाए तो हमारी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। जैसे हमने शुरू में बात की थी, जब तक जिज्ञासा बनेगी नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगी, क्योंकि ये सेशन आपका आखिरी सेशन तो है नहीं, राइट, आपको तो और आगे जाना है। तो जब तक जिज्ञासा बना के छोड़नी पड़ेगी कि आगे आप आगे खुद से भी कुछ कर पाए, राइट। फिर आते हैं डीप फेक ईमेल्स। Google and IBM has implemented the email verification system where you are thinking that कि email का content क्या है। आपको email आएगा आपके डायरेक्टर से कि can you transfer the fund to some this account। तो this system, the phishing system is going to identify कि आपके डायरेक्टर का लिखने का पैटर्न क्या था। पहले वो एनालाइज करता है, पहले लर्निंग मोड में रहता है कुछ दिन, 90 डेज, 30 डेज, 120 डेज, और उसके बाद आइडेंटिफाई करता है कि आपके डायरेक्टर हेलो लिखते हैं या गुड मॉर्निंग लिखते हैं पहले, या हाउ आर यू लिखते हैं, और जो लिखने का जो पैटर्न है, किस तरह की ग्रामर यूज़ करते हैं, किस तरह का सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो सिस्टम इज गोइंग टू लर्न, राइट। और सडनली अगर उनका ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और उन्होंने मेल लिखा कि अपने अकाउंट टीम को कि कैन यू ट्रांसफर द अमाउंट ऑन अर्जेंट बेसिस, आई एम स्टक समवेयर। So this system is going to identify that okay, this email is not written by your director,
एक रेड अलर्ट आएगा एंड दिस ईमेल वहाँ पे क्वारंटाइन हो जाएगी एंड द एडमिनिस्ट्रेटर हु वाज देयर राइट, वो एनालाइज करेगा कि रियली इस डायरेक्टर ने लिखा है, आपके डायरेक्टर ने लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि जो उनका पैटर्न है वो मैच नहीं कर रहा है. ही इज गोइंग टू वर्क ऑन द डीप लेवल्स टू अंडरस्टैंड योर पैटर्न्स, योर डे टू डे एक्टिविटीज एंड कंप्लीट पिक्चर आइडेंटिफाई करता है. सडनली एक बच्चा आज 10 GB की इमेज या कोई वीडियो डाउनलोड या डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने लग जाए तो वो सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा ये बच्चा तो डाउनलोड रोज करता नहीं है, अचानक से क्यों डाउनलोड कर रहा है. इट्स गोइंग टू ब्रेक योर कम्युनिकेशन. शायद आपको आपके पेपर्स मिल गए हो, डेटाबेस का एक्सेस हो गया हो, या आप किसी की फाइल चुरा रहे हो, या ऑर्गेनाइजेशन की मेन फाइल आप बाहर कहीं भेज रहे हो. तो दिस इसके वी कॉल्ड एज ए UBA, यूजर बिहेवियर. यूजर का बिहेवियर क्या है, द सिस्टम इज एनालाइज करता है कि सडनली आपका बिहेवियर चेंज हो गया. इसे फॉरेंसिक भी आती है राइट, फॉरेंसिक पे बाद में बात करेंगे. IoT और ऐप हाईजैकिंग कैसे काम करता है. IoT आपने देखा होगा ग्रीन टू एनर्जी, विंड एनर्जी, दिस एग्जांपल. ग्रीन एनर्जी में क्या होता है, अचानक से अगर विंड का अगर विंड जो फैन है ज़्यादा तेजी से घूमने लग जाए तो IoT सिस्टम क्या एनालाइज करता है कि द एनर्जी इज गोइंग टू जो प्रोड्यूस हो रहा है वो नॉर्मल डे से ज़्यादा है, वेयर द सिस्टम इज गोइंग टू ब्रेक द फैन सिस्टम्स. वो विंड्स को ब्रेक करता है, मतलब उसको प्रोसेस को ब्रेक करता है ना, स्टॉप करता है कि वो डैमेज ना हो. तो इस तरह के सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रियल लाइफ सिनेरियो में. सो दिस इज समथिंग हम यहीं पे सेशन क्लोज करते हैं. तो आपको कुछ होमवर्क हो चुके होंगे राइट. तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे आई विल शेयर सम कॉन्टैक्ट्स एंड ब्लॉग्स टू यू वेयर यू कैन पोस्ट योर थॉट्स, योर क्वेरी, योर क्वेश्चंस. एनी क्वेश्चंस प्लीज. हाँ जी, कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स से होने चाहिए. ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू.